کہ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف سامنے آیا ہے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان سامنے آیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت 262 روپے کر 253 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ حکومت کا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 7 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب بتائیے۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے عوام کو ایک بڑا ریلیف دے دیا گیا ہے۔ پیٹرول جو کہ دن بدن مہنگا ہی ہوتا جا رہا تھا اور عوام کی پہنچ سے اور قوت خرید سے جو ہے وہ باہر ہوتا جا رہا تھا، حکومت نے ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے کمی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 7 روپے قیمت میں کمی کر دی گئی ہے۔ جبکہ آپ کو بتایا چلوں کہ پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 253 روپیز فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ اس سے قبل پیٹرول جو تھا وہ 262 روپے فی لیٹر کے حساب سے فروخت ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اب سے کچھ دیر قبل ہی جو ہے یہ تمام تر جو قیمتوں کا اطلاق ہے شروع ہو چکا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ 254 کر دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی جو پہلے قیمت تھی وہ 261 کے قریب ڈیزل فروخت کیا جا رہا تھا، اب 254 کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 کر دی گئی ہے۔ پیٹرول پہلے 262 کا فروخت ہو رہا تھا۔ پہلے عوام سے جب بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، دن بدن عوام جو ہے وہ پریشان ہی دکھائی دیتی تھی، کیونکہ دن بدن پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہی ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ پیٹرول جو تھا وہ مہنگا 5 روپے 10 روپے 15 روپے کے حساب سے ہوتا تھا، لیکن جب سستا کیا جاتا تھا 1 یا 2 روپے ہی صرف کیا جاتا تھا۔ لیکن اس بار حکومت کی جانب سے عوام کو ایک بڑا ریلیف دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ اکٹھے ہی 9 روپے فی لیٹر کے حساب سے کمی کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی جو قیمت ہے اس میں 7 روپے کے حساب سے کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 254 جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت 253 مقرر کر دی گئی ہے، جس کا اطلاق ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ جی خبر یہ ہے، نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے جنا اسپتال کے ایم ایس کو برطرف کرنے کا معاملہ۔ پنجاب سروس ٹریبیونل نے ڈاکٹر امجد کے تبادلے کو روک دیا۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر امجد کی محکمانہ اپیل کا جلد فیصلہ کریں، پی ایس ٹی کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر امجد نے سیکرٹری صحت کے جاری کردہ تبادلے کو پی ایس ٹی میں چیلنج کیا تھا۔ اہم اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے جنا اسپتال کے ایم ایس کو برطرف کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ پنجاب سروس ٹریبیونل نے ڈاکٹر امجد کے تبادلے کو روک دیا۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر امجد کی محکمانہ اپیل کا جلد فیصلہ کریں۔ ڈاکٹر امجد نے سیکرٹری صحت کے جاری کردہ تبادلے کو پی ایس ٹی میں چیلنج کیا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے جنا ہاسپٹل کے ایم ایس کو برطرف کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ پنجاب سروس ٹریبیونل نے ڈاکٹر امجد کے تبادلے کو روک دیا ہے۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر امجد کی محکمانہ اپیل کا جلد فیصلہ کریں، پی ایس ٹی کی جانب سے کہا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر امجد نے سیکرٹری صحت کے جاری کردہ تبادلے کو پی ایس ٹی میں چیلنج کیا تھا۔ تو اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے جنا ہاسپٹل کے ایم ایس کو برطرف کرنے کا یہ معاملہ ہے، جبکہ پنجاب سروس ٹریبیونل نے ڈاکٹر امجد کے تبادلے کو روک دیا تھا۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر امجد کی محکمانہ اپیل کا جلد فیصلہ کریں۔ ڈاکٹر امجد نے سیکرٹری صحت کے جاری کردہ تبادلے کو پی ایس ٹی میں چیلنج کیا تھا۔ خبر یہ ہے، پرویز الہی کی رہائی کی روبکار۔ جیل حکام کو موصول ہونے کے بعد بھی رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے پولیس اور اینٹی کرپشن کی ٹیمیں 8 گھنٹے بعد جیل سے روانہ ہو گئیں۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے پرویز الہی کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ گھنٹوں انتظار مگر سب بیکار۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس۔ پرویز الہی کے ضمانتی مچل کے بینکنگ جرائم کورٹ نے منظور کیے۔ پرویز الہی کی رہائی کے آرڈر جیسے ہی ہائی کورٹ نے جاری کیے، پولیس کی ٹیم میں اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے کی ٹیمیں کیمپ جیل پہنچی۔ کیمپ جیل کے باہر پولیس کی بھاری نفری سارا دن کیمپ جیل کے باہر پرویز الہی کی روبکار کا انتظار کرتی رہی۔ پرویز الہی اور ہائی کورٹ کی ٹیم شام 6 بجے کے بعد روبکار لے کر کیمپ جیل پہنچی۔ ذرائع کے مطابق سپرنٹینڈنٹ جیل نے پرویز الہی کو
रिहा करने से माजरत करते हुए कहा कि अगर रोपकार 5 बजे तक मौसूल हो जाती तो रिहाई मुमकिन थी। अब जेल में गिनती मुकम्मल हो चुकी है, अब रिहाई मुमकिन नहीं। सुप्रिंटेंडेंट के इनकार के बाद पुलिस की भारी नफरी और एंटी करप्शन के अफसरान जेल से रवाना हो गए। परवेज इलाही के वकला की टीम भी जेल हुकाम की तरफ से इनकार के बाद वहां से रवाना हो गई। अदालत के ऑर्डर पर परवेज इलाही की रिहाई अब सोमवार को मुमकिन है, लेकिन साथ ही एंटी करप्शन और पुलिस की टीमें परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन राना उमैर के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सियासी मफादात के लिए मुल्की मफाद को दांव पर लगाया गया। गुज़श्ता हुकूमत की वजह से अमरीका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान और मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब। मज़ीद कहा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना एक हकीर सी खिदमत है, बिजली महंगी करना IMF की शर्त है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। पिछली हुकूमत ने जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात को एक कारी ज़र्ब लगाई थी, बिल्कुल नाकबत अंदेशी की वजह से और इंतहाई महदूद सोच के हवाले से, उसको इस मखलूत हुकूमत ने इन ताल्लुकात को हमवार करने में दिन रात एक किया है। हमारे इंटरेस्ट हैं, उनको कौमी मफादात के बाला नहीं बल्कि उसके तहत रखनी चाहिए। मैं आपको बता रहा था IMF के बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमाए रात को, उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ साहब माजी में और माजी में जब उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो हमें अच्छी तरह समझ आया कि वो क्या बात कर रही थी, कि माजी में जो मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे बड़ी मुश्किलात पैदा हुई और उससे गैप्स बढ़ गए और मामलात जो हैं वो बड़े मुश्किलात में चले गए। लेकिन आपकी और आपकी टीम की, फाइनेंस मिनिस्टर की, सबकी एफर्ट से ये प्रोग्राम दोबारा बहाल हुआ है। तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि बिजली के नरखों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं। अब जहाँ तक ये बात है, देखिए मैं आपसे बड़े अदब से और इंतज़ारी से बात कर रहा हूँ कि लाइन लॉसेस हैं। लाहौर के सियासी मंजरनामे पर हलचल। दुबई में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर लाहौर में डेरे जमाने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी कराची से लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचते ही साबिक सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंच गए। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के सियासी मंजरनामे पर हलचल। सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी लाहौर में चंद रोज कयाम करेंगे। साबिक सदर मुमलिकत लाहौर पहुंचते ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंच गए। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा के निगरान सेटअप पर भी मुशावरत की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात में आम इंतखाबात, निगरान सेटअप समेत आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मौजूदा असम्बली की मुद्दत के खात्मे की हतमी तारीख पर भी मुशावरत की गई। ज़राए का दावा है कि आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में खत्म करने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ ने दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी करवाई। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान को लाने पर भी गौर किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई, इसे मिलकर साफ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी सारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर है। मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों का ख्वाब महज ख्वाब ही रह गया। आसिफ अली जरदारी के दौरा लाहौर के दौरान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कई रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी इम्कान है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा है। वज़ीर-ए-आज़म से ओल्ड ग्रावियंस के अहदेदारों, वफाकी मुशीर बराए मजहबी अमूर शबीर अहमद उस्मानी और पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू PM तलहा बरकी ने मॉडल टाउन में मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म जहांगीर तरीन के घर भी गए। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद यासीन की।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आज़म से ऑल रावियन एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारों ने मॉडल टाउन में मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील वफाकी वज़ीर बराए कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की मुल्की तालीमी मैदान में गिरां कदर खिदमात हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी मुल्क की नुमाया दरसगाह है जिसने कई नामवर सपूत पैदा किए। शुरा ने इस मौके पर कहा कि हमारे लिए बाइस फख्र है कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म खुद गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम याफ्ता हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर शब्बीर अहमद उस्मानी और पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू PM तलहा बरकी ने भी मुलाकात की। मुलाकात में हल्का NA 132 और NA 134 के तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने शब्बीर अहमद उस्मानी की दरख्वास्त पर महकमा FWO को मेन फिरोजपुर रोड पुराना कहना और रूही नाले का मसला फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। NA 132 और NA 134 के तरक्याती मंसूबों के लिए बड़ा पैकेज देने का हुक्म भी जारी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जहांगीर तरीन के घर भी गए। शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन के भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मरहूम आलमगीर तरीन की मगफरत के लिए दुआ भी की। मुआविन ख़ुसूसी ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क में मजबूत मुआशी प्रोग्राम के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला किया है। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान से इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। ज़राअत, सन्नत और कौमी तरक्की के मुख्तलिफ शोबों के लिए सिफारिशात अमल में लाई जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से पार्टी सेक्रेटेरिएट लाहौर में साहिवाल से नूरेश शकूर, गुजरांवाला से राना नज़ीर अहमद खान, हाफजाबाद से मामून जाफर और उकाड़ा से दीवान इखलाक ने मुलाकातें की। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि सालाना मुल्की शरह नमू तशवीशनाक हद तक कम हो चुकी है, जिसमें इजाफे के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने होंगे। मौजूदा तकाजों के मुताबिक जदीद खतूत पर पॉलिसियाँ मुतारिफ करवाई जाने की जरूरत है। ज़राई और माशी माहिरीन की सिफारिशात को तरजीही बुनियादों पर पार्टी मंशूर में शामिल करेंगे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ा सियासी फैसला जहांगीर खान तरीन का कहना था कि इस वक्त मुल्क को इस्तेहकाम की अशद जरूरत है। इन हालात में वफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल वफाकी वजीर और बदस्तूर वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए ही IPP वजूद में आई है। जहांगीर खान तरीन का कहना था कि मौजूदा हालात के पेश नजर मुल्की मुफादात पार्टी मुफादात से ज्यादा अजीज हैं। आने वाले इंतखाबात में सियासी फैसले उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहरियों को सस्ती और मयारी सवारी की फराहमी। अब लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों के लिए मुनासिब सवारी हर रोज़ का बाकायदा आगाज़ हो गया। यंगो पाकिस्तान ने लाहौर में सर्विस का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शीज़ा फातिमा की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत। झलकियाँ इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर समेत 3 शहरों के बासियों को सस्ती और मयारी सवारी की फराहमी का मिशन। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में यंगो पाकिस्तान ने सर्विस हर रोज का आगाज कर दिया। यंगो पाकिस्तान की लॉन्चिंग तकरीब में वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शीज़ा फातिमा की ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में मुआविन ख़ुसूसी शीज़ा फातिमा ने कंपनी के इक़दाम को सराहा। शीज़ा फातिमा ने कहा कि इस कंपनी के आने से नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे। Yango coming to Pakistan is specially and very important for our young people. 70% of Pakistan's population is under the age of 30. Yango डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है। लॉन्चिंग तकरीब में यंगो पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर फैसल इफ्तिखार, हसाम हुसैन समेत दीगर ने शिरकत की। कंट्री मैनेजर फैसल इफ्तिखार ने कहा, यंगो की सर्विस एशिया में सबसे पहले पाकिस्तान में लॉन्च की जा रही है। हम ड्राइवर्स के बजाय बराह रास्त कंपनीज के मालिकान से डील कर रहे हैं। बाकी जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली ड्राइवर्स के साथ काम कर रही होती हैं। हमारी कंपनी, हमारे केस में हम पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। ये टोटल 20 से ज़्यादा ममालिक में ये ऑलरेडी लाइव है। मिडल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका, पाकिस्तान एशिया का हमारा पहला मुल्क है जहाँ पे हमने लॉन्च किया है। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हम लाइव हो गए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम और शहरों में भी लॉन्च करेंगे। गुलकारा नताशा बेग की परफॉर्मेंस ने यंगो पाकिस्तान की लॉन्चिंग तकरीब को 4 चांद लगा दिए। यंगो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रुप फोटो करवाते हुए बताया कि हमारी सर्विस पाकिस्तान में दीगर तमाम ट्रैवलिंग कंपनी से मुख्तलिफ और सस्ती साबित होंगी। 9 मई को शरपसंदों की सिक्योरिटी आलात की तोड़फोड़, सेफ सिटीज़ के कैमरों और ट्रैफिक सिग्नल्स की तोड़फोड़ और सामान चोरी होने पर करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
9 मई को तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने सिक्योरिटी आलात की तोड़ फोड़ की। सेफ सिटीज के कैमरों और ट्रैफिक सिग्नल्स की तोड़ फोड़ और सामान चोरी पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जमान पार्क, सर्वे रोड, मेन बुलेवार्ड, लिबर्टी चौक समेत दीगर शाहराहों पर 2 करोड़ 4 लाख के कैमरे और सिग्नल तोड़े गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ शाहराहों पर नसब 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा के सिक्योरिटी कैमरे तोड़े या चोरी किए गए। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर अपनी शराख्त छुपाने के लिए कैमरे तोड़ डाले। मुतअद्दिद कैमरों के टावर पर नस्ब बॉक्सेस से अशिया भी चोरी की गई। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने कैंट और सिविल लाइंस डिवीजन में शरपसंदों के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज कराए। सेफ सिटीज हुकाम की जानिब से नुकसान के हवाले से रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी गई। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक वार्डन अदनान शॉर्ट सर्किट से झुलस गया है। अदनान को मेयो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सीटो लाहौर के हुक्म पर एसपी सिटी, डीएसपी अनारकली और इंचार्ज वेलफेयर मौके पर पहुंच गए। ट्रैफिक वार्डन ने फर्रुखाबाद शाहदरा में किराए पर कमरा ले रखा है, जहां वो अकेला सो रहा था। ट्रैफिक वार्डन अदनान उकाड़ा का रहायशी और मैकलो रोड पर तैनात है। सीटो लाहौर की डॉक्टर से बेहतरीन इलाज मुआवजे की दरख्वास्त की गई है, जबकि शॉर्ट सर्किट की वजूहात बारे तहकीकात की जा रही हैं। कमिश्नर लाहौर और DG-LTA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जबकि लाहौर में जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबे के हवाले से ये अहम इजलास हुआ है। इजलास में CBD, LTA, नेस्पाक, टीपा, वासा और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि PHA और वासा ग्रीन बेल्ट्स को रोड सतह से नीचे करने के असूली फैसले पर काम शुरू किया जाए। शहर के अंडर पासिस की ताज़ीन के लिए डिज़ाइन मुतफरिक नहीं होंगे, जबकि शहर के कल्चर और अंडर पास की नोयत को मद्देनज़र रखते हुए ताज़ीन और आराइश की जाएगी। इजलास में चीफ इंजीनियर LTA इसरार सईद ने LTA से मुतालिका मंसूबों पर ब्रीफिंग दी है। इजलास में MD वासा गुफरान अहमद भी मौजूद थे। खबर यह है, समनाबाद के मकाम पर अंडरपास की तामीर का मंसूबा डेडलाइन पर मुकम्मल ना हो सका। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी LDA की कारकर्दगी से नाला शोबा इंजीनियरिंग की कारकर्दगी को भी नाकिस करार दे दिया। सेक्रेटरी तामीरात और सेक्रेटरी हाउसिंग को फौरी तौर पर प्रोजेक्ट का इंतज़ाम संभालने की हिदायत। ये रिपोर्ट देखिए। समनाबाद के मकाम पर अंडरपास की तामीर का मंसूबा LDA अंडरपास की तामीर के लिए दी गई डेडलाइन पर काम मुकम्मल न कर सका। समनाबाद अंडरपास की तकमील की तमाम डेडलाइंस गुजर गईं। LDA के मुताबिक समनाबाद अंडरपास का तामीराती काम अभी 90% मुकम्मल हुआ। समनाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट में ताखीर पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शदीद इजहार बरहमी। समनाबाद प्रोजेक्ट की PC1 के मुताबिक मुकम्मल करने की डेडलाइन जून 2023 थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 15 अप्रैल तक मंसूबा मुकम्मल करने का हुक्म दिया। LDA का शोबा इंजीनियरिंग 15 अप्रैल तक मंसूबे को मुकम्मल न कर सका। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने 30 मई तक मंसूबे की तकमील की दूसरी डेडलाइन दी। समनाबाद अंडरपास 30 मई को भी ट्रैफिक के लिए ना खोला जा सका। PC1 के मुताबिक तीसरी डेडलाइन जून की थी, लेकिन वो भी गुजर गई। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट को सेक्रेटरी तामीरात और सेक्रेटरी हाउसिंग पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया। अंडरपास की तामीर के दौरान सीवरेज और वाटर सप्लाई की शिफ्टिंग भी ताखीर की वजह बनी।